तो क्यों फिजिसिस्टों को ये अजीब सा लगा? क्योंकि हम स्टेट की पार्टिकल की बात करते हैं। पार्टिकल के पास दो चीजें हैं। पार्टिकल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to upload a podcast with Professor Nasir Iqbal, the esteemed Registrar of University of Kashmir and a pioneering astrophysicist. Professor Iqbal's doctoral work delved into a large-scale structure of universe and gravitational clustering, yielding publication in top international journals on astronomy and high-energy astrophysics. For over 2 decades, he has enriched the Department of Physics through teaching, research collaborations, and now vital administrative leadership. From the labs of cosmic mysteries to the helm of university governance, he champions a secure research-driven campus that nurtures student dreams amid Kashmir's unique challenges. Join us as Professor Iqbal shares insights on science, education, and the future of higher learning in the valley. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's said that heavens have always fascinated humans. They have made humans to get attracted towards themselves. Ptolemy once upon a time set a theory of universe of 8 spheres. Then the progress went on. It's said that once upon a time Bertrand Russell was lecturing an audience, and a lady stood up and said that what you said is all rubbish because the whole universe stands on the back of a giant tortoise. Bertrand Russell in reply said that, tell me, dear lady, on what does the tortoise stand? Today we are here with Professor Dr. Nasir Iqbal Sahab, the astrophysicist of our valley, the Registrar of Kashmir University, the highest seat of learning of our valley, to discuss some physical aspects of pure sciences, especially physics, because that's his own field. And we will learn direct from the horse's mouth about special theory of relativity, how it shocked the world. यानी कि special theory of relativity जब आइंस्टाइन ने पब्लिश की 1905 में, तो क्यों फिजिसिस्टों को ये अजीब सा लगा? Why was there a bit of resistance to it? और मैं आपको वो 3% वाला anecdote भी बाद में बताऊंगा, क्योंकि special theory of relativity appended classical physics by revealing that space and time form a unified space-time fabric where measurement depends on an observer's motion rather than being absolute. आप इसको ऐसे समझिए जैसे न्यूटन ने प्लेटो की थ्योरी को रिप्लेस किया था, वैसे ही आइंस्टाइन ने क्लासिकल फिजिक्स को रिप्लेस किया था। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश हुई, लेकिन लेमैन अंदाज में, सर आपको पता ही है फिजिक्स में काफी मैथमेटिक्स होती है, ताकि आम जानने वाले जो आजकल हमारे लोग रील्स के पीछे भागते हुए खाली एंटरटेनमेंट देते हैं, आज चाहते हैं हम कि उनको थोड़ा सा फिजिक्स का डोज दें, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज में जो वो आराम से समझेंगे। तो सर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पब्लिश हुई तो लोग उससे थोड़ा सा डर गए, घबराए, कहा कि इट्स अगेंस्ट कॉमन सेंस। बेसिकली जब देखा कि टाइम स्लोज डाउन एट हायर स्पीड्स, लेंथ कंट्रैक्शन की बात हो रही है, फिर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वाली बात आ गई, तो ये सब चीजें क्या रहा था उस टाइम सर? देखिए इरफान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग स्टूडेंट ऑफ द फिजिक्स, we never call ourselves as an expert. As an expert, we should always describe ourselves as a students of physics. As students of because physics, physics is a subject जहां आपका रीच नहीं आएगा, that you will be able to say that I know everything about physics. So therefore, as a student of physics, I pay a great tribute to the Einstein, who has been a great scientist of the times, who talked about the theory of relativity. Whether we talk about the special theory of relativity, we talked about the general theory of relativity. देखिए, you yourself said that हम जब टाइम की बात करते हैं, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जिस पे दुनिया चल रही है, दैट इज दैट कॉन्सेप्ट। तो अभी जब हम टाइम को रिलेट करते हैं विद स्पेस, बिकॉज मैं इसमें एक जरूरी बोलना चाहता हूँ, जब हमारा ये जो है, हमारी जब यूनिवर्स का जो बर्थ हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट वेरी 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। वी टॉक अबाउट द स्पेस, वी टॉक अबाउट द टाइम, देन मैटर एंड एनर्जी आर एसोसिएटेड विद 2 components. They are the 2 components. So therefore this space and time are very important. So Einstein worked on this space and time. आप अगर इसमें इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे, ठीक है, जब आप देखते हैं कि टाइम डायलेशन की बात करेंगे, आप लेंथ कंट्रैक्शन की बात करेंगे, एज ए कॉमन मैन वन वंडर्स दैट इज इट रियली ट्रू, बट देन थिंग्स गेट वेरी इजी जब आपको एक प्रूफ मिलता है। देखिए साइंस में क्या है, साइंस वर्क्स ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1,
the first thing is that it will definitely work on your postulate. आपका postulate क्या है? What you are coming with, and then if you have a proof, so that means your postulate has been proved. So then you can say that my theory is 100% in Correct. agreement. So हम special theory of relativity की बात करते हैं. People talked about the Einstein's mass energy relation. People talked about the postulates of special theory of relativity. In earlier times, people were wondering that whether it is true. But once you really go to the classical physics, तो आपको अच्छी तरह से proofs मिलते हैं. It's not like that kind of the ज़्यादा paradox आपको नहीं लग रहा है कि that it completely fails. मैं आपको और एक इसमें add करूँगा. For example, when we talk about the inertial mass, then we talk about the gravitational mass. On the basis of this inertial mass and gravitational mass, you come up with the जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं अक्सर जीटीआर. और जीटीआर को बहुत जगहों पे यूज किया गया है, अच्छी तरह से टेस्ट किया गया है. तो आइंस्टाइन का ये कॉन्सेप्ट भी था उसमें, बिकॉज आपने बात की स्पेस एंड टाइम की. आइंस्टाइन का ये था, ये जो स्पेस टाइम कर्वेचर है, इससे हमें एक ग्रेविटेशनल वेव मिलनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स. तो बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एक क्रिटिक टाइप के वो बता दिया, नहीं ये ट्रू नहीं है. बट फॉलोवर्स आर ऑलवेज देयर. जो उसके फॉलोवर्स थे, जो उसके स्टूडेंट्स थे, जो उसका ग्रुप था, दे स्टार्टेड वर्किंग आउट. नहीं, ये तो आइंस्टाइन गेव अ प्रूफ दैट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुड बी वैलिड, एंड विद इट्स वैलिडिटी वी शुड हैव द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव्स. बिल्कुल ठीक है. क्या हुआ कि आई टॉक अबाउट द वेस्ट, मैं यूएस की बात करूंगा, मैं कनाडा की बात करूंगा, मैं और जगहों की बात करूंगा. दे स्टार्टेड मेकिंग द डिटेक्टर्स. वो डिटेक्टर जिससे एक आइडिया मिलेगा, ये जो स्पेस टाइम कर्वेचर है, क्या इज इट पॉसिबल दैट वी विल हैव अ ग्रेविटेशनल वेव? मैं आपको बताऊंगा, फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक नहीं पता चला. इनफैक्ट द डेवलपिंग कंट्रीज हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन दोज डिटेक्टर्स. तो उसके बाद नाउ वी आर ऑल रिवोल्यूशनाइज्ड विद द डे टू डे फिजिक्स, बिकॉज आपने देखा होगा पिछले कहीं 5, 7, 6, 7 सालों से ही नाउ वी हैव द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इनफैक्ट द नोबेल प्राइज वाज शेयर्ड. एग्जैक्टली. अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल वेव क्या है, इट इज काइंड ऑफ द, these are the ripples of space time curvature. So जैसे आपके पास ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपका दूसरे साइड में है ग्रेविटेशनल वेव. सो जो भी आपकी बॉडी होगी विच हैज ए ग्रेविटेशनल मास, सो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल मास इट विल हैव ए स्पेस टाइम कर्वेचर. वो जो स्पेस टाइम कर्वेचर आपको कैसा पता ही चलेगा? इन द फॉर्म ऑफ ए वेव विच इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल वेव. Although the amplitude of that gravitational wave is very, very less. It's not like that. That's why they were hard to detect. That is why they were hard to detect. But thanks to the wonders of the science, and thanks to all those great physicists who didn't. देखिए, साइंस में आपको मैं एक चीज बताऊंगा. साइंस में क्या है कि you don't have to lose a courage. The moment you will lose a courage, you are no longer interested in science. Exactly. Because science believes on your courage. आपके पास कितना courage है कि आप साइंस को आगे चलाओगे. In fact, ये जो हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस विल रीच टू द यंगस्टर्स. सो my advice, my in fact will be to these students कि if you want to take career as a scientist, have very great encouragement with your youth. Many times you will feel that science is not interested, but आपके वो discoveries आते हैं डे टू डे साइंस में जो आपको बहुत encouragement दे रहे हैं. तो चूंकि मैं आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ, हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हमने भी बात की, तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव आजकल हमारा एक, मैं आपको बताऊंगा, दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरी हार्डकोर टॉपिक इन एस्ट्रोफिजिक्स. इन एस्ट्रोफिजिक्स अभी हमारे पास बहुत अच्छे डिटेक्टर्स बने हुए हैं इन फॉरेन कंट्रीज में. आपका लाइगो है, आपका लीजा है, आपका और भी डिटेक्टर्स है. मैं खुश हूँ इस लिहाज से भी, बिकॉज हमारे कंट्री में इन इंडिया वी हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन द लाइगो इंडिया. और लाइगा इंडिया जो बन रहा है, ये बन रहा है टुवर्ड्स इन दिस महाराष्ट्र बेल्ट में बन रहा है. And a very good budget is being spread on that. उसमें अच्छा पैसा खर्च हो रहा है. अच्छा, मैं आपको बताऊंगा, we will excel in the general theory of relativity. We will excel in the gravitational wave physics. और जो हमारा youth है, who are the pioneers in this, जो इसमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होगा, चाहे फिजिस्ट होगा, hundreds of them get involved. अभी gravitational wave astronomy में hundreds of projects आते हैं. So people work in that projects. So the idea is that
फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है which makes you surprising. Yes, you will get surprised because physics is, I can say that everywhere you have a mathematics. कहीं पे mathematics is a very technical. Sometimes it looks very complex. उस complex को देखकर आपको लग रहा है कि ये प्रूव तो नहीं हो सकता है ट्रू, बट चाहे आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे, both are valid principles of the Einstein on which I can say that जो हमारा यूनिवर्स है, आप बर्थ ऑफ यूनिवर्स की बात करें, आप स्पेस टाइम की बात करेंगे, आप बिग बैंग की बात करेंगे, सो जो भी आपके पास इस वक्त बड़े ऑब्जेक्ट्स, चाहे आपके इसमें यूनिवर्स में, चाहे आप ब्लैक होल्स की बात करेंगे, चाहे न्यूट्रॉन स्टार्स की बात करेंगे, उनकी एग्जिस्टेंस आप डायरेक्टली तो नहीं देख सकते हैं, बट आप ग्रेविटेशनल वेव को देखकर आपको पता चलेगा माय ब्लैक होल इज देयर, माय न्यूट्रॉन स्टार इज देयर, माय हेवी मैसिव ऑब्जेक्ट्स आर देयर, सो इट विल डायरेक्टली हेल्प यू to know about the evolution of the universe. एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। हम जीटीआर की बात कर रहे थे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां डॉक्टर साहब ने बखूबी कहा कि विद ये जो डेवलपमेंट हुई है ग्रेविटेशनल वेव्स की, प्रेडिक्शन जो पहले की गई थी बाद में वो साबित हो गया, उससे हमको बिग बैंग यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझने में काफी मदद मिलेगी। इनफैक्ट इट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू यूनिफाई, जिसको हम गट थ्योरी कहते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, इन चार फोर्सेस को, इवन इंक्लूडिंग क्वांटम मैकेनिक्स। तो एक एनेक्डोट मैं यहां आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि सर आर्थर एडिंगटन, जिन्होंने जनरल थ्योरी को प्रूव करने में मदद की थी आइंस्टाइन की, उससे किसी ने कहा था, शायद ही वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, लुडविग सिल्बरस्टाइन, या कहा जाता है कि एक रिपोर्टर ने कहा कि सुना है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 3 लोगों की समझ में आती है, एक आप और आइंस्टाइन। तो एडिंगटन थोड़ा रुक के उन्होंने बोला कि ये तीसरा गाय कौन है। खैर, हम बधाई देंगे आइंस्टाइन को आज भी कि उनकी उस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से हमको एक मैथ्स की थोड़ी सी डेफिनेशन मिली, मैथ्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो ये चीजें उससे आई। ठीक है, टाइम क्यों स्लो डाउन होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, ये न्यूटोनियन लॉ ऑफ फिजिक्स जो है उसके बिल्कुल खिलाफ थी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पूरी वजाहत के साथ इन चीजों को एक्सप्लेन किया। सर, अब एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब हम फिजिक्स की फिलोसफी की बात करते हैं, इफ बिट ऑफ फिलोसॉफिकल, क्योंकि वर्नर हेजनबर्ग ने भी फिलोसफी फिजिक्स लिखी थी, क्या हम कहेंगे सर कि अगर हम हर एक चीज रिलेटिव रिलेटिव कहते हैं, डू वी से दैट इन अदर वर्ड्स दैट देयर इज नो फर्म ट्रुथ और एब्सोल्यूट ट्रुथ इन फिजिक्स और एवरीथिंग इज रिलेटिव? वी हैव टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज रिलेटिव। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा। लेट्स टेक ए वेरी सिंपल, बिकॉज साइंस में क्या है कि यू शुड ऑलवेज प्रोजेक्ट और पॉपुलर जो है साइंस इन ए वेरी सिंपल वे। बिल्कुल सर। आप मेरे पास बैठे हैं, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग विद रिलेटिव टू यू एंड यू आर वाइस वर्सा टॉकिंग रिलेटिव टू मी। जब भी हम दो बॉडीज की बात करते हैं, बिकॉज साइंस में क्या है, आपको एक बॉडी की कंपैरिजन में दूसरी बॉडी रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी टॉक अबाउट द relative motion between the sun and the earth. So why we are talking about the relative motion between the sun and earth? Because the earth moves around the sun. So हम अक्सर बोलते हैं, when you talk about the Kepler's laws of planetary motion, we say that earth moves around the sun in such a way that the sun is at one of the focus and earth is there in the elliptical plane. So there is a relative. Similarly, अगर हम दो bodies की भी बात करेंगे, time is very relative. अगर हम मुझे मेजर करना है, मैं डेफिनेटली मेजर करूंगा टाइम विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई एम रेस्टिंग एट दिस पॉइंट, सो डेफिनेटली आई विल से दैट मैं 5 बजे यहाँ बैठा था, सो दिस वाज माय पोजीशन, so I have to say that my time is related with my position, so therefore we have to believe that it is a relative. और जब तक ना आप relativity has come from the relative term, so you have to believe that this is a relative. We cannot say that I am absolute. I have to always consider my motion with respect to some surroundings. Surrounding is my relative. It can be my frame of reference. फिर वो दूसरी बात है, मैं कौन सा frame of reference लेता हूँ। क्या मैं, if I talk about the Newtonian max, so I will talk about the inertial frame of reference. ठीक है। So it is देखिए, the thing is that आप किस पैरामीटर से, किस अप्रोच से थिंग्स को प्रूव करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। चाहे आपने फिलॉसफी की भी बात कही है, I am very happy to share this that now many good people are working on the philosophy of science. Philosophy of science. ठीक है। If I am talking about the philosophy of science, I will talk about the philosophy of time, philosophy of space. So where from this space and time has come? We always talk about the time because हम theory of relativity में time की बात कर रहे हैं. So where from this time has come?
So it is an absolute term which has come from the Big Bang. So Big Bang के साथ आप टाइम अकेला नहीं चलाओगे, आप टाइम के साथ साथ उसका स्पेस भी चलाओगे, उसका स्पेस भी चलाओगे. So for time to exist, we need an event. Even in physics, we have got several definitions of time. Professor Saab is speaking about the cosmological definition of time. When we speak of second law of thermodynamics, we simply get the direction in which entropy flows. So once again, we are going to discuss certain things regarding these measurements. Einstein once said that God does not play dice with cosmos. He was not sure about the working of quantum mechanics. He always believed that there should be a deterministic approach, whereas Neil Bohr said that quantum mechanics has got a probabilistic approach. So that's why even Einstein worked for hidden variables theory to put up certain mathematical parameters which will kill the probabilistic nature of quantum mechanics. What's your take on this, sir? देखिए, before we go ahead, it's very important to tell you that quantum mechanics is a very advanced kind of the mechanics. ठीक है, those things which you are not probably able to measure or study in classical way, you go to the quantum way, because quantum is based on some probabilistic approaches. अगर आप देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये देखना है क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या है, वेयर क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन. जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करें ना, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द श्रोडिंगर्स इक्वेशन. ठीक है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट द पार्टिकल और इफ यू टॉक अबाउट द वेव, सो यू स्टार्ट विद द श्रोडिंगर इक्वेशन एंड देन सी दैट हाउ माय इक्वेशन इज वैलिड टू दिस थिंग. नाउ there is two things are very important. One is the position, another is the momentum. We are speaking about Heisenberg's uncertainty. So that is one of the very important thing that you use in quantum mechanics. You can never accurately have the position as well as the momentum. So on the basis of this, so many advanced things have come into picture, जिसने quantum mechanics को बहुत advanced ले लिया. अगर आप देखेंगे आजकल हम यूजुअली जब चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, दो तरीकों से स्टडी करना चाहते हैं. क्या हम क्लासिकल जाएंगे या क्वांटम जाएंगे? बिल्कुल. अभी चूंकि हम स्टेट की पार्टिकल की बात करते हैं, पार्टिकल के पास दो चीजें हैं. पार्टिकल को मुझे देखना है व्हाट्स इट्स पोजीशन, मीन्स वायर इट्स स्टेट, इसका स्टेट क्या है. इस चीज को डिस्कस करने के लिए मुझे क्लासिकल भी है, मुझे क्वांटम भी है. क्लासिकल मीन्स दैट आई विल यूज वेरी सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स. ठीक है, मैं देखता हूँ दिस पार्टिकल का मास क्या है, what is the force acting on this, and how it will move, what can be the other appropriate and associated parameters. That is how I do very classically. लेकिन क्वांटम में जब आप देखोगे, you will have to use a different thing. आपको थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ेगा. यहाँ आप स्टेट की बात करेंगे, वहां भी आप स्टेट की बात करेंगे, लेकिन वहां पे आप वेव फंक्शन की बात करेंगे. So you will have to use, मैं इरफान साहब वही बोल रहा हूँ, जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, it is a very I can say that a very technical kind of a treatment in order to use to define the state. लेकिन जैसे हमने हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, position and momentum, we cannot accurately measure precisely the position and the momentum of a particle at any. Because you want to say, Dr. Saab, because if we go for measuring the position, we have to bombard it with a photon of shorter wavelength, exactly. But it will disturb its momentum. So the result or the experimentation or experimental observation depends upon the mode of measurement. Heisenberg always said that if I am going to look for position, its momentum will be disturbed. Yeah, exactly. So the potential, vice versa, it is true. Exactly. So Einstein, what he said, he created EPR paradox, Einstein, Rosen and Podolsky paradox, in which he created certain mathematical entities where he thought that I could calculate both position and momentum simultaneously. खैर ये तो बाद की बात है. हम बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स ऑब्जर्वेशनल चीज है. अगर आप किसी पार्टिकल को वेव किसी फोटोन का वेव नेचर देखना चाहते हो, तो आपको वेव पोटेंशियलिटी ग्रो करनी है. पार्टिकल देखोगे तो पार्टिकल पोटेंशियलिटी ग्रो करनी है. थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन फॉर क्लियरिंग दिस कंसेप्ट. तो सर हम बात करेंगे आज, आप जिसके एक्सपर्ट है, अगर आप स्टूडेंट भी कहते हैं, लेकिन आपकी किताबें भी छपी है माशाल्लाह, आपका एक्चुअली फील्ड है सर कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. आप हमें सर इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात बताइए, जिसने 97% ऑफ कंटेंट जो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है. क्या है ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर? मैं आपको बताऊंगा. अभी हम डायरेक्टली डार्क मैटर डार्क एनर्जी की बात नहीं करेंगे. पहले मैं आपको बात बताऊंगा. देयर इज अ साइंस
which is used to study the evolution of the universe. Exactly. Which is used to study the origin of the universe, or which is used to study the structure of the universe. That we call as a cosmology. So cosmology is the science used to study various cosmos. Your sun is a cosmos, your star is a cosmos, many cosmological particles. ठीक? अब इसके दो तरीके हैं इस कॉस्मोलॉजी को आप जब यूज करते हैं, because this is a very confusing otherwise term. इसके दो चीजें हैं, एक है एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोनॉमी इज प्योरली एंड ऑब्जर्वेशनल. अगर आपके पास टेलीस्कोप है, यू वांट टू स्टडी एनी स्टार, यू वांट टू सी एनी स्टार, आप एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स लगाते हैं, मोशन ऑफ कॉमेट्स, जो भी कुछ करना चाहिए, व्हिच यू ऑब्जर्व. दूसरा हो गया कि यू हैव ऑलरेडी बिल्ड अ वेरी हाईली फिजिकल लॉज. फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट अगर दो बॉडीज है विद डिफरेंट मासेस, ठीक है, देयर विल बी अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन and that will be proportional to the product of the masses. It will be inversely proportional to the square of the distance. So therefore it is your physical law. Now आप इस physical law को अगर यूज करना चाहते हैं to study the motion of the objects, तो astrophysics बन गई. बिल्कुल सही. So this is how you actually differentiate between astronomy and astrophysics. अब एस्ट्रोफिजिक्स में क्या है, यू डेवलप द मॉडल्स. मॉडल कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा. मॉडल मीन्स दैट यू आर यूजिंग वेरियस लॉज ऑफ फिजिक्स. ठीक, उनको कंबाइन करके यू वांट टू डेवलप समथिंग, सम रिलेशन फॉर एग्जांपल व्हिच बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ. दिस लॉ इज बेस्ड बाय यूजिंग वेरियस लॉज ऑफ फिजिक्स. सो आपका एक मॉडल बन गया. अब इस मॉडल को आपको टेस्ट करना है. जब आप टेस्ट करेंगे ना, यू विल यूज ऑब्जर्वेशंस, यू विल यूज एक्सपेरिमेंटल डेटा. वो जो ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट डेटा आप यूज कर रहे हैं इस मॉडल में, यू कैन produce your results. This is how actually astronomy and astrophysics work together, or how they are fused together. ठीक है. Now अभी हम जनाब जब, because I want to make it very clear, अभी जब हम जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इन द यूनिवर्स. ठीक सर. जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स जो हर एक को पता है. फॉर एग्जांपल मैं, इफ यू आर नॉट नोइंग साइंस फॉर एग्जांपल, लेकिन आपसे भी अगर बताऊंगा गैलेक्सी क्या होता है, यू विल से दैट मिल्की वे इज माय ओन गैलेक्सी. ठीक है. सो वी हैव सपोज गैलेक्सीज. अगर हम एक गैलेक्सी की बात करेंगे, उस गैलेक्सी में क्या क्या है अंदर से, ठीक है, हम बात करेंगे जनाब उस गैलेक्सी में स्टार्स भी है, उस गैलेक्सी में ये जो डस्ट भी है, गैस भी है, नेबुला है, जो बिल्कुल. लेकिन उसमें हम बोलते हैं देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट नोन, व्हिच इज नॉट क्लियर, व्हिच इज नॉट विजिबल. व्हाट इज दैट? एंड व्हिच, और जो लोगों ने देखा है, पता भी चला है दैट इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट मास. सो उसको बोलते हैं डार्क मास. सो दैट मीन्स आई कैन से दैट द मैटर व्हिच इज देयर और व्हिच हैज बीन पोस्टुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट डिटेक्टेड yet, that is a dark matter. But at the same time we know that there is an energy responsible for this thing. That is your dark energy. और जब आप देख रहे हैं, मैं मॉडल्स की बात बताऊंगा जनाब, जब आप यूनिवर्स को मैप कर रहे हैं, ठीक है, आपको तीन चीजें होती हैं. एक होता है ऑर्डिनरी मैटर. ऑर्डिनरी मैटर इज बिटवीन यू एंड मी. सेकंड इज एंटी मैटर, जो डिराक की, इट इज बिटवीन यू एंड मी. मैं आपको बताऊंगा ऑर्डिनरी मैटर. दूसरा है डार्क मैटर. तीसरा है डार्क एनर्जी. और जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है अभी तक, your maximum is dark matter which amounts to 68%. 68% exactly. Am I true? Am I correct? Yes. Then the rest is your dark energy. Dark energy. You are around 4 to 5% is your normal matter. और अब आप देख लीजिएगा, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल मैटर की बात कर रहे हैं, हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं. बिकॉज अभी भी कोशिश हो रही है हाउ टू वर्क फॉर द एविडेंस ऑफ दैट डार्क मैटर and subsequently to the dark energy. So the evidence or the presence or the discovery of the dark matter and dark energy, I can still say that it is a challenge to the astrophysics of the world, how to find out a very easy way of detecting the dark matter and the dark energy. Thank you sir, thank you sir, thank you very much for this simple explanation so that the people may understand it. We will come to your administrative part now sir. Oh. You are also registrar of the university and you have got certain dreams how to uplift the academic standard of this Kashmir University, which is the highest learning seat of our valley. And secondly, you may have got certain thoughts to make it a research hub. Before dealing with your administrative part, I would like to ask you a very simple question, sir. Why don't people opt for pure sciences now? आपको भी पता होगा सर, आजकल 3 साल 4 साल का कोर्स करके चलो जल्दी जॉब मिल गई, इस चीज को पीछे छोड़ते हैं. तो प्योर साइंस तो जरूरी है सर, क्या रीजन लगता है आपको? देखिए साहब, मैं आपको बताऊंगा,
looking for the job or searching for the job is not bad. That's very important बिल्कुल because that's a dream of every child. एग्जैक्टली But at the same time, we should not forget our physical science because your everything is based on the laws of your science. आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, आप कभी बिल्डिंगें बना रहे हैं या जो भी टेक्नोलॉजी आप कंप्यूटर्स बना रहे हैं, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके पास, बिल्कुल आपके AI ML मशीन लर्निंग है, आपके पास साइबर सिक्योरिटी है, आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, द बेस इज योर साइंस. सो मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा वी टीचर्स have to be very much responsible for it. आपको you have to work out for this because it's टीचर का एक एम ही नहीं है कि मैं जाऊंगा क्लास में और पढ़ाऊंगा. टीचर का एक ये रोल रहना चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट को कैसे इंस्पायर करूं so that he becomes very close to the science. हमारे पास hundreds of students होते हैं. मैंने देखा है there is one group of students जिनको आइडिया ही नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, मैं सिर्फ फिजिक्स करूंगा, फिजिक्स में PhD करूंगा, PhD के बाद मैं पोस्ट डॉक करूंगा. ही डजंट केयर फॉर ए जॉब. उसको पता है इफ आई डू गुड आई विल गेट इट. ऐसा नहीं है कुछ. लेकिन मैं आपको बताऊंगा देयर आर अदर सर्कमस्टेंसेस. देखिए ग्लोबल आप देखोगे जॉब्स की कमी है, दीज AIs जो आए हैं अब, सो इससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट तो पड़ता है बट मैं आपको बताऊंगा कि योर फिजिकल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट कम आउट, यू कैन नॉट लीव. आपको अगर बॉटनिस्ट बनना है तो आपको साइंस पढ़ना है, आपको अगर जोलॉजिस्ट बनना है तो आपको साइंस पढ़ना है, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस पढ़ना है, आपको अगर साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बनना है तो आपको साइंस पढ़ना है. सो देयरफॉर इसमें मैं आपको बताऊंगा टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है, parent भी responsible है. Therefore, we need to work out. This is actually a challenge for a teacher. Why I will not be able to? अगर मेरा MSc फिजिक्स में मेरे पास सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स अगर कुछ चाहते हैं हम सिविल सर्विस करें, कोई चाहता है मैं बिजनेस करूं, कोई चाहता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, बट आउट ऑफ 50 I should be able to pick out 20 good students who do science and who do wonders. फ्यूचर फिजिसिस्ट बने, जो फ्यूचर में जाए. I cannot be always there. Someone has to replace me. Someone has to replace you tomorrow. Exactly, yes, sir. That is how the people have to work. You are 100%. एक और क्वेश्चन सर, आप एकेडमिक्स में भी है, आप रेस्ट, हाउ डू यू बैलेंस दीज थिंग्स? क्या आपके एकेडमिक्स पर इस एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई असर? जनाब ये सवाल तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा. मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती. बिल्कुल. देखिए अगर आप देखोगे इस वक्त मेरे ऑफिस में इट इज 5:15, ठीक है, तो लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली बैठोगे यू विल सी मी 7 बजे तक, इवन 8 बजे तक. What after at 7 I will do? I will open my book and laptop, prepare my lecture. अच्छा, दूसरे दिन के लिए because tomorrow I have a class. ठीक है. अगर मैं यहाँ नहीं कर सका I will go to my home and prepare it there in the late hours. ठीक है. सुबह भी मैं मॉर्निंग में पढ़ूंगा क्योंकि मेरा लेक्चर है. So I know that how I can manage the time. ठीक. अभी सैटरडे होती है, मैं अपने स्कॉलर्स के साथ मीटिंग करता हूँ. अभी दिन को भी कभी स्कॉलर्स को जरूरत पड़ती है, वो आते हैं मेरे पास, हम डिस्कस करते हैं. सो मुझे लगा अगर आपके पास एक डेडिकेशन है, आपके पास सिंसियरिटी है, आप रास्ता निकाल लोगे. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते. यू कैन डू इट, बट सब्जेक्ट दैट यू हैव दैट अर्ज टू डू. दूसरा है कि मैं बताऊंगा मैं क्लास नहीं लूंगा, क्यों भाई मैं एडमिनिस्ट्रेशन में. आई कुड हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्सक्यूज, बट मैं चाहता हूं नहीं, आई विल नॉट सैक्रिफाइस माय क्लास. जिसकी वजह से एक्चुअली पहचान है. कुछ भी हो मैं क्लास में जाता हूं. मैं कभी ऑनरेबल वाइस चांसलर को बोलता हूं मैम इस दौरान मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इस between 10 to 11 I am in my class. It's up to me. I should not sacrifice my urge. I'm a teacher, so I should not leave that. थैंक यू डॉक्टर साहब. अभी कौन से चैलेंजेस लगते हैं डॉक्टर साहब आपको, जो अभी करंटली फेस कर रहे हो, जो आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या क्या ड्रीम्स है आपके लिए, आप किस डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी को लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज? देखिए साहब मैं आपको बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. बिल्कुल ठीक है. आप स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं भाई आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. हर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मुझे शौक है फिजिक्स की साइकोलॉजी देखना, मुझे शौक है फिजिक्स की फिलॉसफी देखना. ठीक है, मैं फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स पे PhD करना चाहता हूँ. I can do. I will go to the philosophy department, take a supervisor from there, and work out for. This is actually the beauty of the NEP.
आपके पास अब आप एक डोमेन में बंधे नहीं रहोगे, आपके पास फ्रीडम है, आप ह्यूमैनिटीज में जा सकते ठीक हो, आप है, साइंस भी आप ले freedom सकते हो। और दूसरी बात है, ठीक है, मैं 2 साल पढ़ूंगा, उसके बाद मैं पहले 2 महीने जॉब करूंगा अपने कमाई के लिए। दिस इज एक्चुअली अ सिस्टम विच हैज विच विल माशाल्लाह रिवोल्यूशनाइज आवर एजुकेशन सिस्टम। बट अभी इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि एज बीइंग द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैं ये चाहूंगा और हमारा ये ड्रीम है विद ऑनरेबल वाइस चांसलर और जो हमारे प्रोफेसर साहिबान है, हम चाहते हैं टू मेक दिस institution as the University of Kashmir as one of the best institutions of the world. Country में तो है माशाल्लाह, we are being counted as one of the best, लेकिन हम चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स कल वाशिंगटन जाए, हम चाहते हैं वाशिंगटन के स्टूडेंट्स अगर इंडिया आए तो उनको पता चलना चाहिए देयर इज अ यूनिवर्सिटी जहां हम जाएंगे। अभी आपसे पहले ही मेरे को एक ऑफिशियल मेल आया था फ्रॉम वन ऑफ अ गुड फॉरेन कंट्री, फॉरेन यूनिवर्सिटी से, their 14 professors have desired to visit the University of Kashmir for an interaction. So मैं वो चाहूंगा, मैं चाहूंगा that to take this university to the international not level, only to the national level but to the international level. उसके लिए we means as a student, as a researcher, as a faculty, as an administrative staff, as a registrar, as the vice chancellor, as the dean or as the head, as any other individual, have to work very hard. Very hard. At the end, I will simply like to quote the great physicist of all time, Richard Feynman, his policy of catch them young. If you are able to inculcate the critical thinking and interest in students, then physics, mathematics, or other pure sciences, it's not a difficult thing. It will be very easy. So what should be a role of a physics teacher to attract people for physics? To attract students towards physics is that we will have to make their mathematics background very strong, and then give them such kind of inspiration lectures. Give them 10 lectures about Einstein. बच्चे का एक वो इंस्पिरेशन वहां से होगी ना, ट्रिगर करना है, उसको बोलना है, देखिए भाई आइंस्टाइन ने कितनी मेहनत की, उसने इतनी मेहनत की कि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक हम आइंस्टाइन को याद करते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो आइंस्टाइन माइंड में होता है, शाम को भी आइंस्टाइन माइंड, बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरी, बिकॉज ऑफ हिज वर्क। सो इफ यू वांट टू एक्सेल इन द लाइफ, यू हैव टू डू द बेस्ट। और बेस्ट करने के लिए, सिंस आई एम अ फिजिक्स स्टूडेंट, physics is a scoring subject, physics is an interesting subject, physics is a very excited, and मैं चाहूँगा किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी एरिया के लिए science should be very strong. Science should be. If we are very strong in science, we are the best. We are the best, exactly. So at the end, I will tell you, physics is everywhere. The moment you start thinking there's physics after it, even if you go for neuroscience, how things work, you will have to work on the electromagnetic theories. So everything, everywhere you look at, physics is always in the work. Thank you, Dr. Saab. Thank you for this nice conversation. Assalamu alaikum.